हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडमी। आज का हमारा क्लास है रियलिसिस कोर्स का पार्ट 60, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस के ऊपर कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिफिनीशंस है जिस पे हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। दैट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब क्या है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस of sequence of functions। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, इसका मतलब क्या है? ठीक है, वी से दैट a sequence of functions fn converge uniformly on a to a function f if for every epsilon greater than 0 there is a natural number and not such that n is greater than or equal to n naught implies mod of fnx minus fx. This thing is less than epsilon for all x belongs to a। ठीक है, हम इसको सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे। We denote this symbolically by writing इस तरह से, दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ये डबल एरो का मतलब यूनिफॉर्मली, टू f ऑन द सेट ए। इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो एक थ्योरम के फॉर्म में है। ठीक है, वो एक थ्योरम के फॉर्म में है। फर्स्ट क्वेश्चन prove that a sequence of functions fn defined on a is uniformly convergent on subset of A, on B which is a subset of A, to a function f defined from B to R if and only if the sequence of numbers
if and only if the sequence of numbers dn, the sequence of numbers dn where dn equal to supremum of mod fnx minus fx, mod fnx minus fx, x belongs to b, x belongs to b for all n belongs to n, for all n belongs to n, this sequence of numbers converges to 0. This sequence of numbers converges to 0. ये हमें इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, ये हमें इस्टेब्लिश करना है. छोटा सा प्रूफ है, देखते हैं कैसे इसे इस्टेब्लिश करेंगे. सॉल्यूशन. सपोज फर्स्ट दैट fn converges uniformly to f on b. ये मान लेते हैं. Then given epsilon greater than 0, there exists an n naught belongs to n. There exists an n naught belongs to n such that mod of fnx minus fx, this thing is less than epsilon for all n greater than or equal to n naught, and for all x belongs to b, ठीक. Hence for n greater than or equal to n naught, dn, which was supremum of mod fnx minus fx, where x belongs to b, this thing is less than or equal to epsilon. ठीक. This thing is less than or equal to epsilon. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एंड कॉन्सिक्वेंटली limit of dn as n tends to infinity, this is equal to 0. Then चलो, ये तो स्टैब्लिश हो गया. ये पहला पार्ट है जो स्टैब्लिश हो गया, ठीक है. कन्वर्स पार्ट पे आते हैं. सपोज नाउ दैट लिमिट ऑफ dn as n tends to infinity, this is what? 0. Then mod of fnx minus fx, ये मॉड्यूलस, this thing is less than or equal to supremum of mod fnx minus fx, where x belongs to b, this thing is less than epsilon. For sufficiently large n. And for all x belongs to b,
for all x belongs to B, which means that this sequence of functions fn is uniformly convergent. On B to function f. On B to function f. ठीक है, ये हमने स्टैब्लिश कर लिया, एक बार रिकैप कर लेते हैं, चले आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन ये बोला है, assume that fn converges uniformly to f on A and gn, another sequence of functions, converge uniformly to G on A। ठीक, हमें ये दिखाना है, show that this sequence fn plus gn, this sequence converge uniformly to f plus g on A। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है, is it true that fn into gn, this converge uniformly to f into g on A। क्या ये भी ट्रू होगा? ये हमें जज करना है। ठीक है, क्या ये भी ट्रू होगा? ये हमें जज करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, we get mod of fnx minus fx, this thing is less than epsilon by 2, and mod of gnx minus gx, this thing is again less than epsilon by 2, for n large enough, and for all x belongs to A, ठीक है। thus mod of fnx plus gnx, ठीक, minus fx plus gx, this modulus this is less than or equal to mod of fnx minus fx, इसका मॉड्यूलस
प्लस mod of gnx minus gx, this modulus. This is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, that is epsilon for n large enough. For n large enough and for all x belongs to A, and for all x belongs to A. ठीक है, तो ये जो एजर्शन एडिशन के लिए होल्ड करता है, ठीक है, ये जो एजर्शन एडिशन के लिए होल्ड करता है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए होल्ड नहीं करता। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करता, यही हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, दैट दिस होल्ड्स फॉर एडिशन एंड एडिशन अलोन, दिस डज नॉट होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, दिस डज नॉट होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसे समझने के लिए हम समझते हैं, टू सी दैट the analogous assertion does not hold for the product of two uniformly convergent sequences, for the product of two uniformly convergent sequences, consider the following functions. Consider the following functions. ठीक है, दो फंक्शन हम ले लेते हैं, दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, हम दिखाते हैं कि वो दोनों इंडिपेंडेंटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट पे, लेकिन उनका प्रोडक्ट फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, एफ एन एक्स ये हम डिफाइन कर रहे हैं x इंटू 1 माइनस 1/n, ठीक, एंड जी एन एक्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं 1/x², फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल 0,1, for all x belonging to this open interval 0,1. अब हमारे पास क्या है, we have this sequence of function fn converges uniformly on f on open interval 0,1, है ना, and this sequence of function gn converges uniformly to g on this open interval 0,1, where fx क्या है, fx equal to x and gx equal to 1/x², 1/x²। ठीक है, on the other hand fnx into gnx, this is what, this is equal to 1/x into 1 minus 1/n, 1/x into 1 minus 1/n। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है,
टू द फंक्शन 1/x। ठीक है, ये फंक्शन है, ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, लिखते हैं इसी बात को। सो दिस फंक्शन, दिस प्रोडक्ट फंक्शन fn into gn is pointwise convergent, is pointwise convergent on open interval 0, 1 to the function fx equal to 1/x, to the function fx equal to 1/x, but since dn जो हमने पहले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, सुप्रीमम ऑफ क्या, मॉड ऑफ fnx इंटू जी एन एक्स माइनस 1/x, this modulus where x belongs to open interval 0, 1, इसका सुप्रीमम क्या होगा, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी फॉर ऑल n belongs to n। this is plus infinity for all n belongs to n, the convergence is not uniform, the convergence is not uniform। okay, आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं इसे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, तो अगला सवाल ये आता है कि अगर दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट फंक्शन को भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करना है, दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो इंडिपेंडेंटली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हैं, और अगर उनके प्रोडक्ट फंक्शन को भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करना है तो क्या एक्स्ट्रा कंडीशन हम इम्पोज कर दें, सच दैट कि इनका प्रोडक्ट फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए। दैट एक्स्ट्रा कंडीशन इज बाउंडेडनेस किसका, एफ और जी का, लिमिट फंक्शंस का। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, जिस लिमिट फंक्शन पे, उस लिमिट फंक्शन को बाउंडेड होना होगा। अगर वो दोनों लिमिट फंक्शन बाउंडेड हो जाए तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक है, देन दिस रिजल्ट विल होल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने कहा था उसे स्टैब्लिश करते हैं।
Question number 3. Question number 3. Assume that Fn converges uniformly to F on A and Gn converges uniformly to G on A. ठीक है. And there is a m greater than 0. There is a m greater than 0 such that mod of fx, this is less than m, and mod of gx, this is also less than m. This is also less than m for all x belongs to a. For all x belongs to a. ठीक है. हमें ये दिखाना है, show that fn into gn, this function converges uniformly to f into g on a. ठीक है. on this subset a. ठीक है. हमें ये दिखाना है. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि gn यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है a पे एक बाउंडेड फंक्शन g पे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो gn है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन gn है, ये खुद बाउंडेड होगा. है ना. वही लिखते हैं. नोट फर्स्ट दैट if gn converges uniformly on A to a bounded function g, then there is a c greater than 0. Such that for sufficiently large n, क्या होगा भाई, gnx is less than or equal to c for all x belonging to a. gnx is less than or equal to c for all x belonging to a. ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं. गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 by the uniform convergence of this sequence of function fn and gn. By the uniform convergence of this sequence of function fn and gn, we get क्या मिलता है हमें, mod of fnx minus fx. This thing is less than epsilon by 2c, है ना. and mod of gnx minus gx
दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2m। ठीक है, ये हम लोग मान सकते हैं, ये हम लोग मान सकते हैं फॉर सफिशिएंटली लार्ज n, for sufficiently large n and for all x, for all x belonging to a, for all x belonging to a। ठीक है, hence for sufficiently large n, hence for sufficiently large n and for all x belonging to a, for all x belonging to a, क्या मिलेगा हमें? मॉड ऑफ एफ एन एक्स इंटू जी एन एक्स, मॉड ऑफ एफ एन एक्स इंटू जी एन एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स, माइनस एफ एक्स जी एक्स। दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू, दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक, इंटू जी एन एक्स, इंटू जी एन एक्स प्लस प्लस मॉड ऑफ जी एन एक्स माइनस जी एक्स इंटू मॉड एफ एक्स। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है दैट mod of fnx minus fx, this thing is less than epsilon by 2c into mod of gnx, ये किससे छोटा था? c से छोटा था। ठीक है, प्लस mod of gnx minus gx, this thing is less than or epsilon by 2m into mod of fx, ये किससे छोटा था? m से छोटा था, वाया कंडीशन, जो कंडीशन हमें दिया हुआ था, है ना। तो सी सी कैंसिल आउट, एम एम कैंसिल आउट, दिस थिंग इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, दैट इज एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन। ठीक ठीक, यहाँ से कंक्लूजन आ गया, हेंस द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन इंटू जी एन converges uniformly to the function f into g on a, on a। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं, इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, लेट an be a convergent sequence of real numbers, let an be a convergent sequence of real numbers and let fn be a sequence of functions, let fn be a sequence of functions satisfying supremum of mod fnx
minus fmx, this thing as x belongs to a, this thing is less than or equal to mod of an minus am, ठीक, for all nm belonging to n, for all mn belonging to n, ठीक। हमें ये प्रूफ करना है, prove that this sequence of function fn converges uniformly on a. This sequence of function fn converges uniformly on a, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एक फंक्शन f पे। कहाँ से आया? ये आया कॉचीज क्राइटेरियन ऑफ रियल नंबर्स से, ठीक है। कॉचीज क्राइटेरियन ऑफ रियल नंबर्स क्या था? फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर n, या देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट n greater than or equal to m implies mod of x n plus p minus xn, this thing is less than epsilon for all p equal to 1 2 3 4 इस तरह से so on, ठीक है। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ, it follows from Cauchy's criterion, it follows from Cauchy's criterion for convergence of sequences of real numbers, convergence of sequences of real numbers that this sequence fn is pointwise convergent, on a, say to the limit function f, say to the limit function f, ठीक है, ठीक है। our task is now to show that the convergence is uniform. The convergence is uniform। अब हमारा काम क्या बचा? ये दिखाना कि जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने के लिए हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डिफिनीशन यूज़ करेंगे, ओके। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ये दिखाने के लिए हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डिफिनीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। लिखते हैं इसको, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, लेट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी arbitrarily chosen, let epsilon greater than 0 be arbitrarily chosen, then by assumption हमें क्या मिलेगा? there is a and not
there exists a natural number n naught such that if n and m are greater than or equal to n naught, then mod of fnx minus fmx, this modulus, is less than epsilon by 2. This modulus is less than epsilon by 2 for all x belonging to A. For all x belonging to A. ठीक है. And by the continuity of मॉड्यूलस फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है ना. मॉड्यूलस फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. बाय द continuity of absolute value function, by the continuity of absolute value function क्या मिलेगा हमें? we get limit of m tends to infinity mod of fnx minus fmx. This thing is less than or equal to mod of fnx minus fx. This thing is less than or equal to epsilon by 2, which is strictly less than epsilon. Which is strictly less than epsilon for every x. For every x belonging to A, and for all n greater than n naught. For all n greater than n naught. ठीक. Hence the proof. ठीक है. Hence the proof. इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं. ओके, क्लियर है ये सबको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है ये? show that the limit function of a uniformly convergent sequence of bounded functions on A is bounded. ठीक है. एंड क्या ये असर्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए होल्ड करता है? हमें दिखाएंगे कि नहीं करता है, एक एग्जांपल के थ्रू. ठीक है, लिख लेते हैं. डज द assertion hold in the case of point-wise convergence? Does the assertion hold in the case of point-wise convergence? एक्चुअली नहीं करता है, इसके लिए हम लेके काउंटर एग्जाम्पल देंगे. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ठीक है, जो बाउंडेड है.
जो बाउंडेड है उसका लिमिट फंक्शन भी बाउंडेड हो, इसका क्या गारंटी है? उसका लिमिट फंक्शन भी बाउंडेड हो, इसका क्या गारंटी है? ठीक है, ये गारंटी देता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अगर वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अपने लिमिट फंक्शन पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो तो उसका जो लिमिट फंक्शन है वो भी बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो तो नहीं होगा। अगर सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो तो नहीं होगा। ठीक है, लिखते हैं इस बात को, लेट fn be a sequence of bounded functions uniformly convergent on a to function f. ठीक, then given epsilon greater than 0 there is a n naught belonging to n. There is a n naught belonging to n such that mod of fx this is less than or equal to mod of f n naught x minus fx plus mod of f n naught x which is less than epsilon plus mod of f n naught x. This holds for all x belonging to A. This holds for all x belonging to A. Since f n naught is bounded on A, so is f. Hence f is bounded on A. Hence f is bounded on A. ठीक है, अब यही कन्वर्जेंस अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो, तो ये लिमिट फंक्शन बाउंडेड नहीं भी हो सकता है। ये हम शो करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये हम शो करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये हम शो करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, जो बोला है हमने वो स्टैब्लिश करते हैं। हमें एक एग्जाम्पल देना होगा, है ना, हमें एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। पहले हम इसे लिख लेते हैं। द लिमिट फंक्शन of a pointwise convergent sequence of bounded functions need not be bounded. है ना। To see this, let us consider ये example fn x, this is equal to minimum of 1 by x and n.
1/x and n for all x belonging to this open interval 0, 1 and for all n belonging to the set of natural numbers. For all n belonging to the set of natural numbers, है ना। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहाँ कन्वर्ज करेगा? 1/x पे, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहाँ कन्वर्ज करेगा? 1/x पे, विच इज अनबाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, है ना, विच इज अनबाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn converges to the unbounded function, fx equal to 1/x on open interval 0 to 1, on open interval 0 to 1, ठीक ठीक। hence the assertion does not holds good, if the convergence is pointwise, ठीक है। कन्वर्जेंस अगर यूनिफॉर्म हो तो उसके लिए होल्ड करेगा, ठीक है। इसे हम एक ग्राफ के ऊपर भी देख सकते हैं, इस तरह से। सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ये ग्राफ हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ये है ओरिजिन, सपोज दिस इज n, एंड दिस इज 1/n, ठीक है। मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है। तो ये फंक्शन किस तरह का है? ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किस तरह का है? दिस इज लाइक दिस, उसके बाद लाइक दिस, ठीक है। और ये कंटिन्यू करेगा, है ना। ठीक है। सो दिस थिंग इज व्हाट? This number is 1/n, this number is 1/n, and ये क्या है? 1 है, ये 1 है, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn, ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो बाउंडेड है, मतलब उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हर एक फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, ठीक है। अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसका लिमिट फंक्शन, ये जहाँ कन्वर्ज कर रहा है, इसका लिमिट फंक्शन बाउंडेड कब होगा?
द आंसर इज, अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे अपने लिमिट फंक्शन पे, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो ये लिमिट फंक्शन भी बाउंडेड होगा। तो ये लिमिट फंक्शन भी बाउंडेड होगा अगर कन्वर्जेंस सिर्फ पॉइंट वाइज हो। अगर कन्वर्जेंस सिर्फ पॉइंट वाइज हो तो बाउंडेडनेस एश्योर्ड नहीं है। मतलब उस केस में क्या हो सकता है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमें ऐसा मिल सकता है जो खुद बाउंडेड हो, जो खुद बाउंडेड हो, बट जिस लिमिट फंक्शन पे वो कन्वर्ज कर रहा है, जिस लिमिट फंक्शन पे वो कन्वर्ज कर रहा है वो बाउंडेड ना हो। ठीक है, जिस लिमिट फंक्शन पे वो कन्वर्ज कर रहा है वो बाउंडेड ना हो। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद का जो प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।